Students and friends, just I am going to complete the chapter preposition, and this is the last video of the chapter preposition. So whatever I have discussed, whatever I told you, whatever I taught you, it is your duty to remember all the things, whatever I mentioned, whatever I told. And the matter is that, the reality is that without preposition, you are unable to write a single sentence. So it is very essential to know about preposition and in detail. If you want to learn it deeper and deeper, you are able to write a long sentence. And especially you must will have to pay your attention that in competitive examination, certain questions on preposition are asked. And whatever I have told you, whatever I taught you, that is not perfect. It is imperfect. And to get the perfection of the chapter, you must have consult to a dictionary, and you must see, you will have to see, you will have to observe the preposition in your dictionary. The dictionary will teach you that what are the prepositions and the words that take preposition you will get in your dictionary. It is not sufficient. Whatever I told you, whatever I taught you, it is not sufficient, insufficient. But I tried to give you some basic formulas that will help you to write a sentence. Let us start the remaining part of the preposition. Whatever I taught you, whatever I am going to teach you, please stay with me and please subscribe and like and share my videos so that it will give me energy, and I will try to give you the best lessons on the remaining part of grammar. After preposition, I will teach you conjunction, and that will be the last parts of a speech. Although I have told you that interjection is not important, and some 5 or 6 words or most hardly 10 words that is used as interjection, and there is no need of knowing interjection. But preposition and conjunction, these two are the very important chapters. So I am going to teach you the remaining part of preposition. So look here, that is 16 OF आओ, एक होता है ओ डबल एफ और एक होता है ओ एफ। तो ओ एफ जो है, इसको सही इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ है आओ, और ओ डबल एफ का सही प्रोनाउंसिएशन है ऑफ। तो जनरली वी से इट ऑफ, बट वी will try to pronounce it आओ। पहला है से के अर्थ में।
कहीं पर हिंदी में से लिखा हुआ है, उसकी अंग्रेजी ऑफ होती है। ये देखिए, ही डाइड ऑफ फीवर, बुखार से। ऑफ फीवर का मतलब क्या हो गया? बुखार से वह मर गया, वह बुखार से मर गया। तो देखिए यहाँ पर ऑफ फीवर से का अंग्रेजी हो गया ऑफ। ही इज एफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से। ऑफ डेथ, मौत से। ऑफ वुड, लकड़ी से। ऑफ डॉग्स, कुत्तों से। तो ये जो ऑफ लगा हुआ है, ये जो ऑफ लगा हुआ है, ये सब से के अर्थ में है। तो से की अंग्रेजी ऑफ होती है। बी नंबर है मे के अर्थ में। कहीं पर हिंदी में मे लिखा हुआ है, उस मे की अंग्रेजी हम क्या करेंगे? ऑफ देंगे। जैसे ही इज क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वह समझने में। यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या हो गया? में, समझने में। वो क्या है? तेज है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, ऑफ सक्सेस, सफलता में। यहाँ ऑफ का अंग्रेजी क्या हो, हिंदी क्या हो गया? मे का अंग्रेजी क्या हो गया? ऑफ। तो मे के अर्थ में ऑफ का प्रयोग होता है। सी नंबर है मे से। कहीं पर में से लिखा हुआ है, तो में से के अर्थ में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो वन ऑफ द टू बॉयज केम, दो लड़कों में से एक आया। में से, दो लड़कों में से एक आया, तो ये हो गया में से वन ऑफ द टू बॉयज। दो में से, दो लड़कों में से एक आया। डी नंबर है के बारे में। कहीं पर के बारे में लिखा हुआ है, तो के बारे में की अंग्रेजी हम देंगे, ऑफ देंगे। आई हर्ड ऑफ दैट मैन, मैंने उस आदमी के बारे में सुना। मैंने उस आदमी के बारे में सुना। आई इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ द थेफ्ट, चोरी के बारे में मैंने उनको सूचना दे दिया। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या हो गया? के बारे में, के बारे में, के बारे में। तो कहीं पर के बारे में लिखा हुआ है, तो आप हम क्या करेंगे? हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। चलिए अब आता है नेक्स्ट 17 नंबर। ये 16 था और 17 आया। टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, हमेशा इसका प्रयोग होता है। तो इसका बहुत सा नियम है। पहला है की ओर। की ओर के अर्थ में लुक टू ऑल, सब की ओर देखो। लुक टू ऑल का मतलब हो गया सब की ओर देखो। की ओर, की ओर, सब की ओर देखो। दिस रोड गोज टू पटना, गोज टू पटना माने पटना की ओर। ये देखिए पटना की ओर, तो ये की ओर के अर्थ में हो गया। बी है को के अर्थ में। कहीं पर को है अगर हिंदी में, तो क्या करेंगे उसको? को के अर्थ में हम आई गेव मनी टू ऑल। टू ऑल माने सभी को, टू माने को हो गया, सभी को मैंने दिया। से के अर्थ में आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा। यहाँ देखिए टू राम का मतलब क्या हो गया? से राम, राम टू राम, राम से कहा। टू का अर्थ कहीं कहीं पास भी हो जाता है, पास के अर्थ में। तो कम टू मी, मेरे पास आइए। देखिए मेरे पास, कम टू मी, मी मेरे। यहाँ मेरा का अंग्रेजी माई नहीं होगा, ऐसा नहीं कि मेरा का अंग्रेजी माई लिख देंगे। क्यों? प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है या जो भी प्रोनाउन आता है, वह ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। इसलिए यहाँ पर मेरा का अंग्रेजी माई नहीं होगा, मी होगा। तो ये टू का इतना यूज हुआ। अभी टू का और यूज है यहाँ पर। देखिए तक के अर्थ में, कहीं पर हिंदी में तक लिखा हुआ है, वहाँ पर हम टू लगाएंगे। फ्रॉम हियर टू देयर, वहाँ तक। देखिए टू माने तक हो गया, देयर माने वहाँ, वहाँ तक। तो तक की अंग्रेजी क्या होता है? टू होता है। के प्रति के अर्थ में, के प्रति भी कहीं लिखा हुआ है, तो उसमें डिसलाइक टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति के प्रति, व्यक्ति के प्रति। टू ए पर्सन, टू माने प्रति हो गया, पर्सन माने व्यक्ति, व्यक्ति के प्रति हो गया। तो टू माने के प्रति भी हो गया। पर, हिंदी में अगर पर लिखा हुआ है, तो पर की अंग्रेजी भी टू होती है। आई इन्वाइटेड हिम टू माई हाउस, आई इन्वाइटेड हिम टू माई हाउस। देखिए टू माई हाउस, मेरे घर पर। टू माने पर, माई माने मेरा, हाउस माने घर, मेरे घर पर। तो टू का अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो गया? पर हो गया। टू का मतलब पर हो गया।
नेक्स्ट है लिए के अर्थ में, हिंदी में लिखा हुआ है लिए, तो लिए शब्द आ जाएगा। तो ही केम टू सी मी, देखिए टू सी मी मुझको देखने के लिए, टू माने के लिए, सी माने देखना, मी माने मुझे, तो मुझे देखने के लिए, तो टू माने के लिए भी होता है। तो इस तरह से टू जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, अक्सर ये काम आता रहता है। अब है 18 नंबर टुवार्ड्स। टुवार्ड्स पहला इसका अर्थ है की ओर, ये टू के सेंस में है, टू या टुवार्ड्स दोनों एक ही होता है। तो टू के अर्थ में ही इज गोइंग टुवार्ड्स द स्कूल। ही इज गोइंग टुवार्ड्स स्कूल, या टुवार्ड्स की जगह पर टू भी लिख सकते हैं, की ओर, वह स्कूल की ओर जा रहा है, माने स्कूल जाता है, माने स्कूल की ओर जाता है। दूसरा है टुवार्ड्स का निकट या लगभग, निकट लिखा हुआ है, लगभग लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं, टुवार्ड्स का प्रयोग हम करते हैं। इट इज टुवार्ड्स इवनिंग, माने कोई कहता है कि अभी अभी, अभी क्या है, शाम है, अभी शाम है, लगभग शाम है, तो टुवार्ड्स इवनिंग, टुवार्ड्स इवनिंग लगभग शाम है। के प्रति कहीं पर लिखा हुआ है के प्रति, उसकी भी अंग्रेजी होगी टुवार्ड्स। तो ही इज काइंड माने वह दयावान है, टुवार्ड्स मी मेरे प्रति, वह मेरे प्रति क्या है, दयावान है। तो देखिए टुवार्ड्स मी का अंग्रेजी हिंदी मेरे, और टुवार्ड्स माने प्रति, तो मेरे प्रति दयावान है। ये लास्ट है विद, बहुत इंपॉर्टेंट है विद। ये जो है विद क्या करता है, साथ लाता है, वो सेपरेट नहीं करता है, उसको एक साथ कर देता है, टुगेदर करता है। तो पहला इसका अर्थ है से के अर्थ में, कहीं से लिखा हुआ है, तो देखिए ही राइट्स विद ए पेन, वह कलम से लिखता है। यहाँ पर देखिए विद ए पेन माने से, विद माने से, ए पेन माने कलम, तो कलम से विद ए पेन हो गया। अब के साथ कहीं लिखा हुआ है, तो के साथ के अर्थ में भी क्या होता है, विद मी मेरे साथ, ही केम वह आया, मेरे साथ वह आया। विद का तीसरा अर्थ है लेकर, लेकर के अर्थ में, तो ही वेंट विद हिज मदर, वो अपनी माँ को लेकर चला गया। तो विद हिज मदर, विद माने लेकर, हिज माने अपना, मदर माने माँ, अपनी माँ को लेकर वह चला गया। अब है के बावजूद, कहीं पर के बावजूद लिखा हुआ है, तो हम ये विद लिखते हैं, विद ऑल हिज लेबर ही फेल्ड, विद ऑल हिज लेबर का मतलब हो गया सभी मेहनत के बावजूद, ही फेल्ड वह असफल हो गया। कहीं कहीं पर मे का अर्थ भी होता है, तो आई हैव नो इंटरेस्ट विद यू, आप में, मुझको आप में कोई रुचि नहीं है, तो ये आप में, ये देखिए विद यू। तो फ्रेंड्स से, स्टूडेंट्स से, ये जो चैप्टर हुआ अब समाप्त हुआ। अभी चाहते चाहते तो इस पर और कुछ बातें हो सकती थी, 2 4 5 वीडियो और बन सकता था, लेकिन फॉर दैट ये जो वीडियो है उससे आपका काम नहीं चलेगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। तो आप डिक्शनरी की मदद लें और डिक्शनरी में देखें, डिक्शनरी में लिखा रहता है, हर डिक्शनरी में अच्छी जो डिक्शनरी होती है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है, कॉलिंस की डिक्शनरी आती है, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी आती है, आप उसमें देखेंगे तो सब लिखा हुआ रहता है, हर वर्ड के बाद क्या प्रीपोजिशन लगेगा ये लिखा हुआ रहता है। तो ये मेरा एडवाइस है कि घर में एक डिक्शनरी होना चाहिए ज़रूर, एक ग्रामर की किताब भी होनी चाहिए, एक ट्रांसलेशन की किताब भी होनी चाहिए, और तब जो है आप अंग्रेजी में अच्छा करेंगे। और ये मैं आपको सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल मैं बेस आपका बना रहा हूँ, बेसिक हम नॉलेज आपको दे रहे हैं। इसके बाद जब ये मेरा समाप्त हो जाएगा बेसिक, तो मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो खैर अब हम इस चैप्टर से, इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। अब इसके बाद नए वीडियो के इंतजार में आप रहें, जहाँ पर कंजक्शन की चर्चा होगी। वो भी लंबा चैप्टर है और बहुत सुंदर चैप्टर है कंजक्शन, क्योंकि वह सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। कंबाइनिंग सेंटेंस, ज्वाइनिंग सेंटेंस, उसी को कहते हैं कंजक्शन।
तो उसकी चर्चा दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।